ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਵੇਂ ਤੇਹਾ ਹਮ ਕਰੂ ਵਖਿਆਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਾਉਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਤ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਨਿਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਉ ਦਸਤਗੀਰ ਸੁਤ ਸੁਣ ਕੈ। ਅਤਿਸ਼ੈ ਅਚਰਜ ਕੋ ਮਨ ਗੁਣ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲਗਿਓ ਹੇ ਪਿਤਾ ਸੁਣੀਜੈ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੁਦਾਏ ਲਿਖੀਜੈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗਾ ਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਸਮਿਉ ਦਸਤਗੀਰ ਸੁਤ ਸੁਣ ਕੈ। ਅਤਿਸ਼ੈ ਚਰਜ ਕੋ ਮਨ ਗੁਣ ਕੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਹ ਬਣੀ ਔਰ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਚੁਕਾਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦਸਤਗੀਰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲਗਿਓ ਹੇ ਪਿਤਾ ਸੁਣੀਜੈ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੁਦਾਈ ਲਿਖੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਏ 2 ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਤੁਮ ਕੋ ਕਹਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਰਹਿਣੇ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਸਹਿਸ ਹਮ ਬਰਖ ਬਿਤਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ 2 ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਆਏ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ 100 ਕਈ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ।
लख पताल आकाश दिखाए, बहुरो ओर का हाथ न आए। ते पिता जी इन्हों ने मैनू लखा ही आकाश विखाए, फिर लखा ही पताल विखाए, पर ओढ़क नहीं पाई उन्होंने, अंत नहीं पाया। थले थले होर भी बड़े सन, थले तक नहीं पहुँचे। ये तो मैं बेनती की वापस लेके आ गया। और इतने भाई साहब भाई गुरदास जी भी लिखते हैं कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने लिता बेटा पीर दा, अखे मीट गया हवाई। लख पताल आकाश लख, अख फर्क विच सब दिखलाई। और नाल लिखते हैं कि भर कुछ कोल प्रसाद दा, तुरो पतालों लई कढ़ाई। वो तुरो पतालों लैके आए ने कि इन्हों की संगत हर थां ते है। और दस्तगीर का पुत्र दस रहा है लखा ही वेख के आया, पर उन्होंने हजे भी अंत नहीं सी, हर थां ते इन्हों की संगत है। गयो हार अवलोक्यो जब ही, कह कर मैं हट आवा तब ही। मैं तो आकाश वेख वेख के फिर पताल वेख वेख के हार गया, व्याकुल हो गया। मैं इन्होंने बेनती की, मैं इन्होंने वापस लैके आ गया कि तो थले थले बहुत ने, पता ही नहीं किन्ने, इतने तो लखां की भी गिनती नहीं होगी। जह कह संगत इनके देखे, पद पुंचे कर प्रीत वसिखी। ते पिता जी होर वड्डे कर, जिथे लखां पताल ने लखां आकाश ने, जेड़े भी पताल विच गए, जेड़े भी आकाश विच गए, उत्थे इन्हां दी संगत रखी। इन्हां दी संगत हर थां ते है, हर थां ते इन्हां दी पूजा हो रही है। और देखो ये साइंस अज बनती है कि आकाश जिहड़ा एक नहीं, ये साइंस मानती है कि पताल भी एक नहीं, एक तो कई ने, अनेक ने। और धन गुरु नानक साहब जी ने ये अज तो 500 साल पहलू कह दिता है भाई एक दो नहीं तो लखा ही ने, इन्हों की गिनती कोई नहीं। और हर थां ते दस्तगीर गिर का पीर जिहड़ा, पीर का पुत्र कह रहा है दस्तगीर का, कि पिता जी इन्हों की संगत भी हर थां ते इन्हों की पूजा है। दस्तगीर सुन अद्भुत पानी, विषम रहो कस जात न जानी। ये सुन के दस्तगीर बड़ा हैरान, समझो जी कुछ ना ले। तो पुत्र की गल तो भी यकीन कोई ना करे कि कितने मेरा पुत्र ही झूठ तो नहीं बोल रहा। ये ठा घटका बेते दो, बैठे रहे उठे न को। पीर मन में सोच रहा दस्तगीर कि हले 2 घड़ियां हुई ने, इस थां ते सारे बैठे, कोई भी नहीं उठ के गया। एडी छेती सारा कुछ वेखा इन्हें। बरख अगन यह कहत बिताए, लाख पताल आकाश दिखाए। ते मेरा पुत्र भी झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। ये कहते कि अणगिणत गिनती तो बिना सालों की भी गिनती कोई नहीं, किन्ने को साल लग गए, लखां की भी गिनती कोई नहीं, किन्ने को लख आकाश ने, किन्ने को लख पताल ने। और गुरु साहब जी ने सारे बता देते हैं। सब बिद लग के बात असंभा, मान रहे हो मन पीर अचंबा। ये सारिया विचार मन में कर रहे हैं और सारा कुछ इन्हू असंभव लगता है कि यह तो हो ही नहीं सकता। और साढ़े च भी बहुते ऐसे शंका करते हैं ना, ये नहीं हो सकता। बड़ा चंबा बड़ा हैरान कि जे होया तो किवें होया, तो असंभव है तो हो ही नहीं सकता। और इन्नी बेनती करते कि धन गुरु नानक साहब जी ने ये कह रहे कि जिहड़ा कई हज़ार साल का सफ़र करके भी तय नहीं सी होना, वो पीर दस्तगीर दे इस पुत्र नूं 2 घड़ियां विच करा दिता। ये कह रहे कि पीर दे इस पुत्र के भाग वड्डे ने कि जिथे कोई नहीं जा सकता, धन गुरु नानक साहब के नाल ये जा आया है।
हृदय विचार केन चिरताई, सब पेरन मैं मोर बढ़ाई। पीर दस्तगीर कुछ समा चुप रहा, अपने अंदर ही विचार करता रहा कि सारे पीरां दे विच मेरी वड्डी वड्याई है। भगतार दे विच सारे मेरी ईन मनदे ने। अजमत माही मोहे समाना, जगत बिखै को पिखो नयाना। मेरे वर्गा करामत इस संसार विच दूसरा अज तक कोई नहीं सी वेखिया। ये सारे लोग मनते सन। सब ही आन मान है मोरी, देश निवाए पग कर जोरी। सारे लोग मेरी ईन मनते सन और बगदाद ते सारे लोग मैं अपने अगे नवा दिते सन। सारे मेरे पैरों च पींदे सन। मम अजमत लेश न इसे आगे, मेर निकट ज्यों रंचक लागे। हुण पीर दस्तगीर अपने मन नाल विचारा कर रहे कि मेरे विच एडी वड्डी अजमत, सारा बगदाद की जेड़ा जेड़ा कोई आउंदा मेरे अगे सारे झुक जाते हैं। पर धन गुरु नानक साहब जी सब तो वड्डे ने। सब ते वड्डा सतगुरु नानक सब तो वड्डे ने कि इन्हां दी अजमत अगे, इन्हां दी शक्ति अगे मेरी शक्ति ते लेश मात्र भी नहीं, कुछ भी नहीं। इन्हां दी शक्ति अगे मेरी शक्ति इन्नी कु है कि मेर निकट जो रंचक लागे। कि जिवें मिट्टी का कणका, मिट्टी का कणका किन्ना कुछ हथ से रखा हो तो नज़र नहीं आता, तो वो कणका जे किते पहाड़ के समेर पर्वत के पहाड़ के चोटे से चढ़ के वेखना हो तो कितों नजर आ जाएगा। ये पीर कहता बस मेरी ताकत उस कणके की तरह है, ये तो समेर पर्वत की तरह है। इन्हों के सामने मैं कुछ भी नहीं, मेरी ताकत कुछ भी नहीं। यह तो मानुख तन नह होई, ऐ खुदाए धरियो तन सोई। पीर दस्तगीर का मन गया कि ये जिहड़ा इन्हां दा तन है, शरीर है, आम मनुख का नहीं, खास मनुख का भी नहीं। इन्हां दा शरीर मनुख का है ही नहीं। ऐ खुदाए धरियो तन सोई, तो खुदा ही ने शरीर लैके आ गए। ये तो आप ही खुदा ने। इसके सर पर होए न को, बंधन बना बंद कर दो। तो इन्हां वर्गा समर्थ ना अज तक कोई होया ना किसी होना है। पीर दस्तगीर अपने मन के नाल विचार कर रहे हैं कि फिर ऐसे खुदा दे अगे तो इन्हों नमस्कार करनी बनती है, इन्हों तो सिजदा ही करना बनता है। इन्हों के चरणों के विच सिर रख देना चाहिए है। अस विचार कै पायन धरियो, और को सगल गर्भ पर हरियो। पीर दस्तगीर के अंदर जिन्ना भी अहंकार से, जिन्ना भी मान से कि मेरे वर्गा अजमत वाला कोई नहीं, मेरे वर्गा, वो सारा अहंकार चला गया। इन्हें उस वेले सतगुरु धन गुरु नानक साहब के चरणों पर अपना सिर रख दिता। सब मुरीद को गिरा अलाए, पागला ले हो खता बख्शाई। जिथे पीर दस्तगीर ने आप गुरु साहब के चरणों पर अपना सिर रखिया, उत्थे जिन्ने मुरीद सन उनके सारे मुरीदां नूं कहंदा भाई देखो, जे अपनी अपनी खता बख्शाउणी चाहुंदे हो नाले मेरी खता भी बख्शा दे। खता बख्शाउणी चाहुंदे तो गुरु साहब के चरणों च सिर सारे रख दे। इसको मनुख तन नहीं जानो, अल्लाह खुदाए स्वरूप पछानो। पीर दस्तगीर अपने चेलियां नूं मुरीदां नूं कह रहे हैं भाई इन्हां दा शरीर केवल मनुख का शरीर ना समझ लियो, ये आप ही अल्लाह ने, आप ही खुदा ने, ये खुदा ही शरीर लैके आए हैं। लोगन सुर नियोग निज पीरा, निश्चय जान्यो गुणी गहीरा। जदों लोगों ने सुनिया निश्चय हो गया, तो जेड़े हथ पत्थर मारने वास्ते उत्ते चुके सन वो हथ भी सीधे हो गए, थले आ गए। वो हत्थों के विच जिहड़ी वधी हुई पीड़ भी घट गई, अंदर की जिहड़ी शरधा वो भी वध गई।
पायन आए उतायन परे, नाना बिदन उपायन तरे। सारे उतावले हो गए कि पहलो जाके मैं मत्था टेकदा, पहलो मेरी वारी आ जाए। उतावले होकर सतगुरु धन गुरु नानक साहिब के चरणों ते आके सिर रखते हैं। अपने वालों जथा जोग जो कुछ उन्होंने कोल सी वो भेटा वे अगे रखते हैं। उतरे अदो भुजा सब है के भाई आगारे बिद जो निके। कहते उन्होंने बाहां थले हो गई, जेडे मोढियां ते बाहां दे विच दर्द से उच्चियां रहन करके वो भी खत्म हो गई, पहला की तरह वो नॉर्मल हो गए। ते जन सरदा बदे महाना, पूजन लग्यो सर्ब तुरकाना। उन्होंने सारे लोगों की ये सुभावक से कि श्रद्धा वध गई कि जिथे साडा एडा वड्डा पीर गुरु साहब के चरणों च झुक गया। साडे तो पत्थर जेडे सी हिले कोई नहीं, पत्थर मारने वास्ते चुके सन, हाथ ही निकले। वो आप ही खुदा है। जिन्ने मुसलमान सन, जिन्ने तुर्क सन, सारे सतगुरु जी की बंदगी करन लगे, पूजन लगे। प्रभ सबको तीनों उपदेशा, सतनाम सिमरो जगतेशा। धन गुरु नानक साहब जी ने सब को उपदेश दिता, भाई सतनाम वाहिगुरु का सिमरन करया करो, उस करतार को चेते रखा करो। पख बाद को भूल न करिए, एक खुदाए सब विकै निहरिए। सतगुरु जी कहते हैं भाई ये पक्षपात कदे भुल के भी ना करियो कि हिंदू है ये मुसलमान है, ये पक्षपाती बिल्कुल छड्ड दिओ। क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं एक खुदाए सब विखै निहरिए। सारे दे विच एक खुदा नूं वेखो भाई, सारे दे विच एक खुदा है। और ये बाबा कबीर जी उस तो भी सदियों पहलों कह के गए कि अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। भाई पक्षपात नहीं करना कि हिंदू चंगा कि मुसलमान चंगा, हिंदू माड़ा कि मुसलमान माड़ा। सारे दे विच उस इक्को दा नूर है, इक्को दी जोत है। सब में जोत है, सोए आप ही जोत रूप होकर वरत रहे। करो जिदड़ असबिद अभ्यासा, प्राप्त होए मुक्त सुख रसा। सतगुरु कहते हैं भाई इनू जो अभ्यास करोगे ना, अंदरों द्वैस चली जाएगी। ये सौखा नहीं, क्योंकि भावें अज प्रचार बड़ा है और अज भाई साहब विचारा कुछ हो नहीं सन, कहना कुछ होर है। उस कहने उत्ते चलना भावें कहने वाला तो भावें सुनने वाला वो कुछ वखरा है। एक कहने आप जरूर कहने कि जात पात गुरु धन गुरु अमरदास जी ने कृपा की तुम मूर्ख भी किया है कि जात का गर्भ न कर मूर्ख गवाना। भावें ना दे नाल जात ना लिखाई जाए पर अंदर किते न किते रह जाता है। और वो सामने होंदा जदों किते रिश्ता करना होवे धी दा पुत्तर दा, कि मैं जट ये सैनी उन्होंने होर जात नाल बुलाउंदे ने, उदों भुल जाते हैं कि खालसा मेरा खास रूप है। फिर चेते आ जाते क्योंकि साढ़े अंदर दी ये गई नहीं, ये ईरखा गई नहीं, भेदभाव गया ही नहीं। धन गुरु नानक साहब जी कृपा कर देन भी पक्षपात नहीं करना। जोत सारे दे विच रब दी है और एक नूर तो सारे पैदा हुए हैं। हुण जे इनका अभ्यास करोगे ये द्वैस चली जाएगी, क्योंकि अभ्यास तो करना ही पेगा कि जिहड़ा सदियों तक जन्म तो लैके अज तक एक अंदर बिठा दिता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, मैं सिख हाँ, मैं इनके हथ का नहीं खाना, मैं इनके मत्थे नहीं लगना, किवें जाए। अभ्यास तो करना ही पेगा, तां सारे चो नजर आएगा। कितक दिवस गुर तहां गुजारे, दे उपदेश अधिक नर तारे। फिर कई दिन गुरु साहब जी बगदाद में रहे, जिहड़ा उपदेश दिता फिर अभ्यास आप नाल बैठ के कराया नहीं, उपदेश दे के अनेकों उत्थे तारिया।
बहुर गवन के कीनी त्यारी, नमस्कार ते चरण हमारी। फिर सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उत्थों अगे चलण की तैयारी की और सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के चरणों में कवि संतोख सिंह जी कहते हैं साडी भी नमस्कार है। पीर दस्तगीर ने भी नमस्कार की। इत्थे कविराज ने यह अध्याय खत्म किया है और इतों अगे शुरू करते अगला अध्याय शुरू करते लिखते हैं। श्री अंगद सुन कथा महाना, श्री गुरु सुन बोलियो मरदाना। भाई बाला जी कहते हैं हे सतगुरु धन गुरु अंगद देव जी, उतों गुरु साहब जी विद्या हो के चले ने बगदाद तो सारे उपदेश दिता है। उस वेले भाई मरदाना जी ने हाथ जोड़े तो धन गुरु नानक साहब ने इस तरह बेनती करके कहते हैं, अब तो किन्नी सैर कनेरी, फिरे जहाँ तहें सित बहु हेरी। भाई मरदाना जी कहते हैं सतगुरु जी हुण तो सैर बड़ी कर ली है, जिथे किते फिर के तकरीबन सारी धरती देख ली है। गमन करो अब अपनन केता, सुन बोले बेदे कुल केता। भाई मरदाना जी कहते हैं सतगुरु जी कृपा करो हुण अपने घर चलो। देखो पहलों कई बार भाई मरदाना जी आते सन के भूखे मार देते, खाने कुछ नहीं मिलता, मैं तो चलिया अपने घर। पर अज भाई मरदाना जी किस होर भावना कहते हैं, ये नहीं कहता कि मैं जाना है। सतगुरु जी हुण सैर बड़ी कर ली, कृपा करो हुण अपने घर में चलो। मरदाने कर याद तुम्हारे, रहत सदा न करो बिसारे। धन गुरु नानक साहब जी कहते मरदाने घर की फिर याद आ गई, घर में बड़ा चेते करना भुला भी जा करते। हादसे के कह रहे हैं भी घर में बड़ा याद करना भुलदा नहीं। जावन की अत चाहे जिद होही, देह पुचाए बिलव बिन तो ही। सतगुरु कहते मरदाने जे घर जाने की चाहत है ना, इच्छा है तो कोई गल नहीं, दस सानू हुणे बिना देर तो। जे पीर दे पुत्र नूं लखा आकाश विखा सकना, तेनों भी घर पहुँचा दूंगे। तू दस तो सही घर जाना भेज दिया। जाए मिलो अपने परिवारा, बनता सुत सो करूं प्यारा। सतगुरु कहते जा भाई जाके मिलना अपने धियां पुत्रां नूं, अपने घर वाली परिवार में जाके मिलता जो उन्होंने मुस्त होंदा जाया। कह मरदाना सहज सुभायक, मैं पूजे सुनिए सुखदायक। ते भाई मरदाने ने कहते सुखा के घर सतगुरु जी को सहज सुभाई गल पूछी ते नाले कहते ने, प्रथमे जाऊं ना सदन मझारे, आप चलो तो जाए संघारे। भाई मरदाना जी कहते ने सतगुरु जी तुहाडे तो पहलों नहीं जाता, घर ते तां जावांगे जे तुसीं पहलों जाओगे। तुहाडे नाल जावांगे, तुसीं अपने घर पहलों जाओगे, फिर मैं अपने घर जावांगा, तुहाडे नाल ही जावांगा। श्री गुरु बोले सहज सुभाए, तू हम ते पहले ही जाए। धन गुरु नानक साहब जी सहज सुभा बोलते हैं, थोड़े जे गंभीर ने। कह लगे नहीं मरदाने जाएगा तो तू पहला, इस वक्त तू पहलो जाएगा। इस थिर आलिया ले संभारू, पाव बंधन ते है छुटकारू। तो हुण जिहड़े घर विच तू जाना ना वो पक्का घर है, उस देवी घर है, उस घर नूं जाके संभालना है। इन्हां बंधनां तो संसार तो तेरा छुटकारा हो जाएगा। और वो घर किहड़ा है?
वो जिहड़ा निज ਸਰੂਪ है, जिहड़ा आत्मा परमात्मा के रूप उहदे विच समा जाना है, जिन्होंने गुरु साहब जी कहते हैं ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी राम। हुण उस घर विच नहीं, हुण निश्चल घर विच जाना है। अस्थिर आलिया घर जग मैं हूँ मैं फेर न फेरा, जन्म मरण दुख मिटगा तेरा। भाई मर्दानिया तेरा जन्म ते मरण हुण मिट गया है। संसार दे विच दुबारे कोई भी शरीर लैके हुण आउणा नहीं पेगा। ना हुण जन्म का दुख होएगा, ना मरण का दुख होएगा। जान्यो साच बचन प्रभ होहूं, बोलियो मरदाना हनमोहन। हुण भाई मरदाना जी तो घर जाने की गल करते सन कि सतगुरु जी घर चलो। नवी नगरी जाके वसाई है, करतारपुर साहब जाके वसो, फिर मैं अपने घर जाऊँगा। पर गुरु साहब के बचन सुन के भाई मरदाने को भरोसा हो गया कि जिहड़े बचन गुरु साहब जी ने कहे ने ये बचन बिल्कुल सच ने। और ये सुन के भाई मरदाना की तो मौत तो डरिया थी। देखो बंदे को पता लग जाए कि तू कल मर जाना है या इन्ने दिन ने, हो सकता है डॉक्टर ने कह दिता हो तू एक 2 दिन कटेगा, महीना कटेगा, और सहम का मारो महीना भी ना कटे। पर भाई मरदाने के अंदर ये मौत का डर नहीं। हाँ जिहड़ा मोह का सी अंदर, मोह घर परिवार का, उनका नाश हो गया कि जे पक्के घर जाना फिर कच्चे घर जाके करना की है। जह तन छुटै कौन थल होही, रही यार बल कितक मोही। भाई मरदाना जी ने हाथ जोड़े कि सतगुरु जी फिर कृपा करो, शरीर जिते छुटे वो थान कहीं होएगी, किहड़ी थान ते शरीर रह जाना है। और कृपा करके ये भी दसो कि किन्ने कुछ दिन आल बला हो रहे हैं, कुछ दिन ने कि कुछ श्वास बाकी बचे ने। रावर के हृदय सब ज्ञाता, यह बताए दीजे सुखदाता। भाई मरदाना जी कहते सतगुरु जी तुहानू तो सारा पता है, किन्ने श्वास ने वो भी पता है, किहड़े थां ते शरीर छुटना, कृपा करके वो भी दस दो, किन्ने कुछ दिन ने जो श्वास ने वो भी दस दो। भलो सथल जानो मरदाना, जहाँ होए के दूर चलाना। सतगुरु कहते हैं मरदाने पासे समझ लग कि जिहड़ी थां ते तेरा शरीर छुटेगा, जिहड़ी थां ते शरीर रह जाना है, वो थां भली हुई होगी, वो चंगी होगी। क्योंकि जिथे तेरे वर्गे ने जाके बंदगी करने वाले ने बैठ जाना, वो थां पवित्र हो ही जानी है। जिथे तेरे तन का चलाना होना, वो थां चंगी होगी। पंच दिवस लो आयु तेरी, 3 घटी दिन रहत हित बेरी। सतगुरु कहते भाई मरदाने इस शरीर की जिहड़ी जिंदगी के दिन ने, शरीरक जिंदगी ये तो 5 दिन की बाकी आ रहा है। 5वें दिन जदों 3 को घड़ियों दिन रह जाएगा, शाम वेले सूरज डुब्बन तो 3 को घड़ियों पहला उदों आखिरी श्वास है। पंच भूतक तन को तब शोर, पहुँचो जाए अचल जह ठौर। सतगुरु कहते ने इस 5 भूतक शरीर को छड्ड के 5वें दिन उस अचल टिकाने पर पहुँच जाना, जिहड़ा निश्चल है, जिन्हें सदा टिकिया रहना है, पक्का घर है जिहड़ा। बूझन लगा बहुत बरदाना, हूँ मैं जब ही मोर चलाना। हुण भाई मरदाने को पता कि 5 दिन ने, 5वें दिन सूरज डुब्बन तो पहलों शरीर छड्ड जाना है। पर भाई मरदाने के बिल्कुल अंदर फुरना भी नहीं आया कि मैं घर पूरी पहुँच जावा, घरदे नूं मिल लवां। क्योंकि साडे संसारिक लोगों नाल हुंदा पता लग जाए, चले जाना मोह छड्डण के बजाय फिर फोन कर करके बुलाई दे
कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨਿਕਟ ਤੁਮ ਹੋ ਕੇ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਕੇ ਮਮ ਚਿਤ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਬੇਦੇ ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬੇਦੇ ਕੁਲ ਦੀਪਾ, ਹਮ ਤਬ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮੀਪਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਹਾਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਗਏ। ਪਰ 1-2 ਦਿਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਰਬਾਬ ਹੀ ਵਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਕੈ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਦ ਆਛੇ, ਅਪਰਥਾਨ ਗਮਣੇ ਤਬ ਪਾਛੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Oh